वो अलग बात है कि मेरे फर्स्ट ईयर में बैक आई थी इलेक्ट्रिकल में, बट I had to read about electrical. I was posted as a deputy electrical officer also, so I had to again read. और एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फौज में चले जाएंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, Yes. See, एक कहावत है कि I used to run away from studies, that's why I joined फौज. Mhm. Now in फौज I am running also and studying also. So Yes, sir. मतलब those who are watching, those who wanna watch this video, हाँ, so for them I just want to say only one thing. अगर तुम ये सोच रहे हो कि फौज में आगे पढ़ना नहीं है, पढ़ना सबसे ज्यादा फौज में पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। का बहुत डिफिकल्ट है, because married आना ही itself it's very difficult. That's true. I have seen a girl who got recommended 4 times. Mhm. तो कमांड टास्क से मैंने पहले उससे पूछा कि आई वेंट एक्चुअली इन आर्मी बोर्ड, तो मैंने उससे पूछा कि फर्स्ट टाइम कौन सी रैंक आई थी, तो सम 50, देन 20, देन 11, देन 7, Mhm. एंड आई वाज लाइक कि तो बाकी और में भी तो जाओ, इसमें क्यों है? तो एंड शी वाज नहीं सर, आर्मी में ही जाना है, Mhm. एंड शी वाज टू गुड एंड आई गेव हर वेरी गुड मार्क्स, मतलब अराउंड ट्रिपल डिजिट में आई गिव. Okay, sir. Still she was 6th rank only. She missed the merit by 1 marks. 3 conditions. एक कैंडिडेट है जो उसने लॉजिकल थिंकिंग की Mhm. और उसने ग्रुप में बोला और ग्रुप मान लिया, तो उसके अच्छे पॉइंट. Yes, sir. एक कैंडिडेट है जिसने लॉजिकल थिंकिंग की, उसने बोला पर ग्रुप नहीं माना, Mhm. तो उसके लॉजिकल थिंकिंग वाले पॉइंट तो वो जीटीओ टिक कर देगा, बट यस इन्फ्लुएंस द ग्रुप वो नहीं हो पाया. Mhm. नाउ एक कंडीशन उसमें ये होती है कि एक कैंडिडेट है जिसने उस बंदे का लॉजिकल पॉइंट सुना और उससे समझ में आ गया कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, और उसने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर दिया. Right. सो तो इस बच्चे के भी नंबर बढ़ेंगे कि यार ये कम से कम अपना दिमाग लगा रहा है और उसकी बात मान रहा है और ग्रुप को भी इन्फ्लुएंस कर. बिल्कुल. तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप लिसनिंग द ग्रुप मेंबर्स, क्या बोल रहे हैं उसको कंपेयर करते रहो. एंड Hello friends, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav, and in today's video we have a very special guest. Today we have Lieutenant Commander Yashwant, who has been one of the youngest GTOs for the Indian Armed Forces. Not only this, sir has served in 33 SSP Bhopal and SSP Kolkata. Sir has assessed over 10,000 candidates for the Stage 1 testing and 1,600 plus candidates for the Stage 2 testing for Indian Army and Indian Navy. Along with that, if I talk about sir, he's been part of SSP Pathshala and helping candidates in achieving their dreams. Details will be given in the description box. Coming back to the video, we have talked about various aspects of GTO and covering all the minute doubts of the candidates in detail. And sir is being one of the calm and cool personalities which I've ever interviewed. So without any further delay, let's get back to the video. Welcome to the platform. I've heard about you and especially sharing with my friends who are right now officers. You have been their GTO, so you're pretty famous among the people who are going to SSP, who have been to SSP, and people got the glimpse of your journey. But I want to explore more around the GTO side, sir. I've seen the interview with Simrat. He's a very good friend of mine, and I literally enjoyed it. इसलिए sir मैं ये video चाहती थी आपके साथ. Thank you so much for joining, sir. I welcome you to the platform. thank you very much, Sheetal, and thank you so much that you gave me an opportunity to again connect with those candidates whom I have seen in SSB. Yes, sir. And whom I will be now teaching. Yes, sir. Because sir, जब भी SSP के बारे में बात आती है तो people used to think this it is just like a normal interview. But there are so many dimensions of SSP and people face so many difficulty क्योंकि वो अपने basis पे analysis करते हैं sir. So जो questionnaire जो मैंने prepare किया है sir, I have taken very minute out, but these are the problems which candidates are facing. But sir, I would like to start with your journey. So GTO की जो personality होती है sir, he stand quite far away from the group, wearing a goggles and smartly dressed up. So they have that aura when we see the GTO. So, sir, it's just a random thought. How did you decided and when did you decided to become a GTO? See, I decided to become a GTO in my first SSB only. Ah, As you okay. said, कि अलग से दिखना और ये वैन लगाना, and we came on bullet. मैं कहा ये 3 चीजें करनी है अपने को. So when I joined, मतलब it was a long journey as you know, and finally when I joined Navy, Yes, sir. so when you write your ACRs, we have one column of courses you would like to go. Yeah. So in every ACR I used to write GTO course. Mm-hmm.
And as I mentioned, I was impressed with my all GTOs. They used to look smart and used to see candidates stay 2 days with GTO. They don't know who's the psychologist. Yeah. Entering office is generally an old person. Yes, sir. GTO is somewhere smart, एकदम बुलेट वुलेट पे रेबन लगा के अलग ही वो चौड़ अलग होती है उसकी. बिल्कुल सर. So and then I used to write in ACR also, and when I was in 6th year of my service, so that time I was posted on board ship INS Aditya, Okay. and my boss, immediate boss, was on leave, and the CEO was there. So Navy में it is offer short service officer can volunteer for GTO course. Okay. You have to be in rank of lieutenant commander, then you can volunteer. So I volunteered for the GTO course, and then I spoke to my boss. He was on leave. मैंने actually उनका room book कराया था शिलोंग में through Postmate. Those who were with my in IMA, so I was in contact with them, and luckily one of them was from Assam regiment, and his regimental center is in Shillong. Okay. So I called him and I told him, यार देख मेरा boss जा रहा है, number 1 cabin करा देना. तो उसने कहा हो जाएगा. So I called, sir, GTO course आया है and I want to volunteer for. So he said, तेरे को जाना है? मैंने कहा हाँ सर जाना है. तो बोले ओके कर दे. Then I went to my CEO, वो फॉर्म भर के मैं CEO के पास गया, and I had a very good relation with my CEO also and my immediate boss also. Okay. So I told him, sir, I want to go for GTO course. बोले you want to go? मैं कहा yes. अच्छा ठीक है जाओ. तो उसने भर दिया. Now उसमें क्या होता है कि पहले आप वॉलंटियर करते हो, देन आपकी ब्रांच के डायरेक्टरेट के पास जाता है वेदर योर ब्रांच इज विलिंग टू लीव यू और नॉट. तो हमारे वहां पे उस समय जो हमारे ब्रांच में JDOP बोलते हैं हम, तो JDOP वाज अ पर्सन whom I have served with him. Okay. So I called him and I told him, sir, पोस्टिंग करवा दो, बिकॉज मुझे पता था मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि सर मेरा GTO कोर्स आ रहा है तो वो मानेगा नहीं. I called him and told him, sir, मेरा दिल्ली पोस्टिंग करवा दो. And he was like, अरे यार तूने तो अंडमान भरा है, यहाँ पे कंप्यूटर में दिखा रहा है. तो I told him, sir, वो तो उस समय भरा था जब PC मिल रहा था, अब PC भी तो नहीं दे रहे हो आप. तो बोले यार दिल्ली पोस्टिंग नहीं करा सकता, तो कुछ और मांग ले मैं दे दूंगा, बट दिल्ली पोस्टिंग नहीं करा सकता. एंड आई वाज लाइक ठीक है सर, मैंने GTO कोर्स भरा है, आप मेरे को उसमें जाने देना. तो बोले ठीक है, दैट आई प्रॉमिस, मैं तेरा नाम यहाँ से आगे फॉरवर्ड. Okay. And the requirement for the GTO course that time was that you should be cleared by all 3 assessors Yeah. in your SSB. जब आपका नाम जाता है तो आपके SSB का रिकॉर्ड निकाला जाता है कि भाई आप तीनों ने पास किया था कि नहीं किया था, एंड ACR में हाई इंटीग्रिटी एंड वो सब होना चाहिए. तो फिर देन माय बॉस केम बैक एंड ही सेड कि यार तू मत जा GTO कोर्स में, इसमें जनरली फेल कर देते हैं ये वो. तो आई वाज लाइक सर कि उस साल में मैंने सिर्फ 10 दिन छुट्टी गया था. एंड आई टोल्ड हिम, सर मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा, आप मुझे इस थ्योरी फेज में जाने दो. देयर आर 2 phases, थ्योरी फेज एंड प्रैक्टिकल फेज. Okay. तो थ्योरी फेज वाज फॉर 30 days in DIPR दिल्ली. तो आई टोल्ड हिम कि सर आप मुझे 30 days के लिए उस थ्योरी फेज में जाने दो. अगर मैं पास हो गया तो जब मैं वापस आऊंगा तब तक मेरा भी रिलीवर आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा और CEO का भी रिलीवर आ जाएगा, तो तीनों चेंज हो जाएंगे. और नहीं हुआ तो देन आई विल कम बैक. देन ही सेड कि ठीक है यार यू गो. देन उस पूरे साल में मैंने 10 दिन की छुट्टी ली थी, बाकी मैं छुट्टी नहीं गया था बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस कोर्स. Yes, sir. And then when I went for theory phase, it was again very difficult for me. It was very tough, very ruthless. मतलब you have to जो ब्रीफिंग सुनते हो ना आप, कैंडिडेट बोलते हैं कि हर जगह सेम ब्रीफिंग कैसी है. वो इसलिए होती है क्योंकि GTOs को वो रटनी पड़ती. वर्बेटम इज है तो इज ही आएगा, आर है तो आर ही आएगा, नहीं तो My God. वहां पे इंस्ट्रक्टर बहुत बजाते हैं, बहुत रगड़ा करते हैं. एंड थ्योरी फेज क्लियर हुआ, देन आई वेंट टू प्रैक्टिकल फेज. प्रैक्टिकल फेज में भी phase 1 was very tough. I was very afraid of my phase 1 instructor. उनका था कि he has never passed any training. And मेरी इतनी हालत हो रखी थी कि phase 1 phase 2 2 phases होते हैं. पहले 5 बैच phase 1 होता है, नेक्स्ट 5 बैच phase 2 होता है. तो 7 बैच में मैं अपने phase 1 इंस्ट्रक्टर के साथ बैठा था, एंड आई वाज आस्किंग कि सर मैं phase 1 में पास तो हो गया ना. तो ही वाज लाइक अरे पास हुआ है तभी तो phase 2 में गया है. बिल्कुल सर.
then I cleared and got posted. So that was journey of GTO, how I Sir, became a GTO. therefore, I'm just saying, sir, I don't know, all the recent officers who have been commissioned, you have been their GTO. That is the reason, sir, मैंने ये term use करे, because आपकी थोड़ी persona, personality भी बहुत अलग तरह की है. तो they are very fond of you, firstly, being GTO of them, and secondly, sir, they were very excited for this podcast. तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है उनके through. And sir, बहुत तरह के candidates SSP में जाते हैं, अलग-अलग personality के, and sir, candidates के fear भी होते हैं. It could be a fear of height, and it could be any of the fears, sir. पर सर मुझे दिमाग में एक चीज आ रही है कि व्हेन यू परफॉर्म एनी टास्क, चाहे वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो, चाहे वो स्नेक रेस हो, एंड यू हैव अ फियर ऑफ हाइट, हाउ समबडी कैन हाइड इट और हाउ समबडी कैन ओवरकम इट? बिकॉज सर ये चीज तो बहुत एविडेंटली पता चल जाती है, कुछ टास्क इस तरह से डिजाइन ही करे गए. सो हाउ, व्हाट इज अ सजेशन फॉर दोस कैंडिडेट्स हु हैव अ फियर ऑफ हाइट, सर? Is that you cannot hide anything from GTO. दैट इज ट्रू, सर. I am giving guidance to candidates. So I tell them, you cannot hide anything. There is no kunji ki aap apna fear of height hata doge. There might be some person who will be teaching ki okay tum number 1 कर देना, number 2 कर देना, number 3 में थोड़ा टाइम पास कर देना, number 5 कर देना, बर्मा ब्रिज, देन उसके बाद GTO सीटी बजाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. GTO पास पावर है. यस सर. वो उसको अगर कंफर्मेशन नहीं मिला है कि उसका फेयर ऑफ फाइट का कंफर्मेशन नहीं मिला, वो सीटी बजा छोड़ो, वो नेक्स्ट भी नहीं बोलेगा. ओके. एंड आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स एंड आई नेवर यूज्ड टू शाउट नेक्स्ट जब तक मेरा वो कंफर्मेशन क्लियर नहीं होता. तो वो फिर बच्चा क्या करता था, सब जगह घूम लेगा, कर लेगा, और फिर वो खुद आके बोल देगा कि सर हो गया मेरा, मेरे से नहीं हो रहा. मैंने कहा ओके डन, लेट्स गो नाउ. जी तो सर. यू कैन नॉट हाइड इट, यू हैव टू ओवरकम. आपको ऊपर चढ़ के नीचे नहीं उतरना है, देन आपको कूदना है. भले ही आपसे मतलब रस्सी नहीं पकड़ी गई, आप कूद गए तो भी चलेगा. जी सर. बट अगर आप ऊपर चढ़ के नीचे आ गए देन नहीं चले. बिकॉज एज ए GTO आई हैव टोल्ड सो मेनी कैंडिडेट्स, आई हैव कॉल्ड देम एंड कि जाके वो नंबर 8 करके आओ, जाओ. ओके, ठीक है. नाउ इफ ईदर ही रिफ्यूजेस कि नहीं सर मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं करना, तो वो खुद ही बोल रहा है कि ही इज हैविंग फियर. और वो जाता है 2-3 बार, जाके रुक जाता है और नहीं कूदता है, तो भी कंफर्म हो गया. जी सर. और अगर वो कूद जाता है देन आल्सो इट कंफर्म्स में कि नहीं, ही इज नॉट हैविंग. See, there is something called ability and there is something called capacity. यस सर. He there like अभी नेवी एंड आर्मी में वर्टिकल रोप इंट्रोड्यूस हो गए. So a person might not be able to climb rope because वो अभी फिजिकली इतना फिट नहीं है. बिल्कुल सर. With training he will be able to do that. राइट. Understood? बट अगर आपको fear of height है तो वो कभी नहीं होगा. You have to overcome. There is no shortcut. आप ये सोचो, आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि मैं GTO को बेवकूफ बना दूंगा, नहीं हो सकता. मैं बाहर अगर गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं एज ए GTO बाहर गाइडेंस दे रहा हूँ, तो अंदर जो असेस कर रहा है वो भी तो GTO है. बिल्कुल बिल्कुल. He has done the same training which I have done. मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो ली नहीं है कि नहीं यशवंत सर ने अलग ट्रेनिंग ली और अंदर जो GTO है अभी उसने अलग ली है. यस सर. So you cannot make fool of system. राइट. You have to overcome. And overcome is by practice. ओके. वो एक स्टेप लेना होता है. आप अगर एक बार कूद जाओगे तो फिर आपका वो डर हट जाएगा. हो जाएगा. राइट सर, दैट्स ट्रू. सर इसीलिए मैंने दोनों चीज यूज करी, बिकॉज कैंडिडेट्स जब बात करते हैं, एज आई एम सेइंग सर, आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोस डाउट्स. जब कैंडिडेट्स बात करते हैं तो दे टॉक अबाउट इट, यू नो, यू कैन हाइड इट, जस्ट थोड़ा प्रिटेंड करो उस टास्क के पास जाके, एंड जस्ट यू नो थोड़ा कोशिश करो और आगे चले जाना, ताकि यू नो वो चीज लगे कि आपने कोशिश किया, बट यू नो देन यू मूव टू द नेक्स्ट टास्क. बट सर जैसा आपने कहा, वो चीज मैं अब समझ पा रही हूँ कि यू नो व्हाट इज योर नैरेटिव, या आप किस तरह से चीजों को परसीव करते हो. एंड आई एम हियरिंग कि आप बच्चों को रोक के भी टास्क करा रहे हो, तो सर दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. ऑल राइट सर. सर 2 दिन के अंदर GTO कंडक्ट होता है, और GTO बच्चों को बहुत अच्छे से इनसाइड आउट समझ आता है कि उस ग्रुप की किस तरह से केमिस्ट्री है, किस तरह से चीज जा रही है. बट देयर आर टाइम्स सर, जो पहला दिन है, मानो कोई कैंडिडेट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एंड बट द सेकंड डे सर ही हैज मेड अप हिज माइंड दैट ही विल डू परफॉर्म गुड, एंड ही हैज परफॉर्म्ड ऑल द टास्क गुड. बट ऑन द सेकंड डे सर उस चीज को GTO किस तरह से परसीव करता है, एंड उसके रेपरकशंस क्या होते हैं?
See, I will give you an example. Relay race देखा होगा ना? First person run, then second person run, then third person run, then fourth person. Yes, sir. अगर आपके पहले दो बंदे धीरे दौड़े हैं तो बाकी दो बंदों को बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा बिल्कुल. just to finish the race, not to come first. आप first तो आ ही नहीं सकते उसमें. To finish the race also you have to you have to run very fast in good timing. Yeah. So first day is very important. अगर आपने फर्स्ट डे में भी फर्स्ट 4 टास्क में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, देन धीरे धीरे जीटीओ आपसे नजर हटाना शुरू करते हैं. Okay. The first task, group discussion, group planning exercise, and PGT. Yes, sir. These 3 tasks are very important. और खासकर जीडी और जीपी, क्योंकि जीडी और जीपी में आपको जीटीओ ग्रुप में देख रहा है कि हाउ यू आर टेकिंग इनिशिएटिव टू स्पीक among 4 or 10 students or 8 students. Yes. Because उसके बाद कोई भी ग्रुप टास्क में आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, because उसके पास डायरेक्टली आपका एक लेक्चर हो, वो भी आपका इंडिविजुअल है. तो वो इंडिविजुअली आपका नॉलेज, आप कैसे मैनर में आप बोल रहे हो, हाउ इज योर पीओई, हाउ गुड यू आर एबल टू गिव लेक्चर इन वेदर इट इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म और हैप्पीजार्ड फॉर्म, वो सब देखता है. Yes, sir. बट ग्रुप में आप कैसे अपनी बात रख रहे हो, दैट इज सीन इन जीडी एंड जीपी. Right. If you are not able to perform in GD and GP, PGT if you perform, HGT okay you perform. There are sometimes candidates generally who are coming from rural background. Their power of expression is not as good as some guys who are coming from urban background. So Right. those candidates are generally mild candidates. They generally take time to speak Yes, sir. in GD and GP. So, but as these guys you directly go in ground or outdoor tasks, these guys take lead. Ground people, because people from rural background, they are still playing games. Yes. People in coming from cities, they have stopped playing games. Yes, sir. So they take lead. तो अगर ऐसा कुछ बच्चा होता है तो जनरली वी आर लीनियंट इन फर्स्ट टास्क जीडी. वी आर लीनियंट बिकॉज इट इज अ फर्स्ट टास्क ओनली. अभी अभी शुरू हुआ है, बच्चा थोड़ा टाइम लेगा घुलने मिलने में, थोड़ी सी हिचक होगी, थोड़ा सा माइल्ड होगा, थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा. So we are generally lenient, so that we are able to give him some points of yeah, let him see, थोड़ा और आगे देखते हैं. Yes. But you have to perform, you have to speak in group discussion. Right, sir. ओके सर, जैसे आपने कहा कि जो इनिशियल टास्क होता है कहीं ना कहीं वहीं से जीटीओ ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देता है, बट अब जीडी के अंदर सर जो चॉइस मिलती है कैंडिडेट्स को, तो देयर इज अ चांस ऑफ प्रेफरेंसेस की कुछ कैंडिडेट्स ने ऐसा टॉपिक लिया सर, कुछ इंटरनेशनल टाइप कि जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की मैं बात करूँ, ही इज नॉट कंफर्टेबल एंड वहां से मोरल डाउन होना शुरू हो जाए सर. तो अब सर इस सिचुएशन के अंदर बाकी के टास्क तो ही इज परफॉर्मिंग, बट कहीं ना कहीं जो चॉइस ऑफ ग्रुप का जो सिलेक्शन था उसकी वजह से उसका जीडी इम्पैक्ट हुआ है. So sir, how GTO perceive that thing? You know sir, कहीं ना कहीं वो कोई जो सिचुएशन में कैंडिडेट है वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे? See, that's why we have 2 GD. One is national, international, and one is social topic. Social topic is topic where any candidate can speak. Okay. So if a candidate who रट के आया रशिया यूक्रेन but इजराइल हमास आ गया, yes sir, तो he should not give up. First of all, second thing, लिसन केयरफुली. आप अगर आपका फेवरेट टॉपिक नहीं आया बट आप सुनो दूसरों की, एंड इट इज नॉट दैट कि आप 1-2 पॉइंट भी नहीं बोल पाओगे. बिल्कुल सर. अगर आप दूसरों की सुनोगे आपको खुद को कुछ ना कुछ पॉइंट याद आ जाएगा कि हाँ ये भी मैंने पढ़ा था, एंड देन स्पीक. राइट. इट इज नॉट दैट कि आपको सी जनरली वो एक ही टॉपिक एक ही बात को लेके वो खींचते रहते हो, भैंस की पूंछ की तरह लंबा पकड़ के खींचते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता. आपको अगर नहीं आ रहा है आप सुनो तो सही. सुनोगे तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो उस चीज पे. आपका भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि यस रशिया इज डूइंग रॉन्ग और यूक्रेन इज डूइंग रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट. तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो आप बोलो उसको. सी वी आर लुकिंग इन अ जीडी, वी आर मैनरिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट. ओके. शो को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे को बस बोले जाना है, मेरे को अपनी नॉलेज देनी. इट इज नॉट लाइक दैट. It is the mannerism which is more important than the content. Yes, content is there.
अगर देखो आप में नॉलेज नहीं होगी तो पहली बात आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप 10 लोगों के बीच में बोलने का इनिशिएटिव नहीं लोगे। बिल्कुल। ठीक है? अगर आप में ये सब है तो फिर जो बोला है उसमें आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस सब दिखेगा। और फिर जब आपको कोई काउंटर कर रहा है, कैसे काउंटर कर रहा है और आप कितना वापस जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उसमें आपका डिटर्मिनेशन आ जाता है। यस सर। सो दिस इज द वे द OLQ कम्स आउट। राइट। यस सर। सो इफ अगर आपको नहीं आता टॉपिक तो डोंट जस्ट सिट आइडल, पार्टिसिपेट, बिल्कुल। दूसरे के पॉइंट लेके उसमें अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करो। सेकंड थिंग, सिर्फ बोलना इज टोटली रॉन्ग। ओके। लिसन, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन, इट इज नॉट अ डिबेट कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करना है। इट इज जस्ट ग्रुप डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन। यस सर। सो तीसरा एक डाउट होता है बच्चों को कि लाइक सर एक ही लीड पे बोले कि यस सर, तीनों दैट लीड इज पे आल्सो बोले। डाउट। यस सर। या सो GTO जब ब्रीफिंग करता है उसमें बोलता है द कैंडिडेट में स्पीक व्हाट यू लाइक व्हेन यू लाइक एंड एज मेनी टाइम एज यू लाइक, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन। ओके, see, what is the aim? What is your aim in GD? Your aim in GD is to show your knowledge to the GTO, यस right? सर। तो पहली बात तो जो 3 लीड दी है, आप उसी लीड को सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा पता है, यस सर। because you would like to participate 5-6 times in a group discussion, correct? राइट। So you will take that lead only in which you have a lot of knowledge. यस सर। तो आप उसी लीड को भी बोलोगे। बट अगर दूसरी लीड पे भी किसी ने कुछ बोला और आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट है तो say yes, I partially agree with you, test number 21, and then put up your point. I want to see your knowledge also, कि आपको उस चीज पे भी नॉलेज है कि नहीं। मैं यहाँ पे आपकी लॉयल्टी नहीं देख रहा कि भाई आपने एक लीड पकड़ ली है तो चलो ही विल बी अ गुड चैप, ही विल नॉट हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स, ही विल स्टिक टू वन गर्लफ्रेंड ओनली। मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा ना, मैं तो देख रहा हूँ आपकी नॉलेज देखना चाहता हूँ, आपका मैनरिज्म देखना चाहता हूँ, बिल्कुल। how you involve the group in the group discussion, whether you are getting frustrated, whether you are getting angry. And Yes. group discussions are very fast moving tasks. उसमें क्या होता है कि बच्चे के चेहरे पे जो फेशियल एक्सप्रेशन आता है वो बच्चे को तो पता नहीं लगता है। यस वो सर। GTO चश्मा पहन के ये देखता रहता है, अच्छा ये गुस्सा हुआ है, ये इसने लिख दिया, तो वो बस हम साइन बना देते हैं, इमोजीज बना देते हैं, हम भी इमोजीज बनाते हैं वहां पे कि अच्छा ये ऐसे कुछ साइन बना दे। ओके सर। सर नेक्स्ट आर GPE है। अब यहाँ पे जब रिटन सोल्यूशन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सर देयर आर टाइम्स कि क्या तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं है तो हम कई बार पूरा सोल्यूशन लिख नहीं पाते हैं अपना कि हमारी क्या प्रायोरिटीज थी किस तरह से। एंड सर रिटन के ऊपर भी मैं बात करूँ जो मुझे चीज क्लैरिफाई करनी है सर, किस तरह से रिटन लिखना चाहिए प्रिसाइजली सर। देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आई हैव हर्ड। टैबुलर फॉर्म में कोई बोलता है, कोई पॉइंटर्स फॉर्म में, somebody says in paragraph you should write, and there are so many things when we try to implement at the SSP sir, we face difficulty in completing the whole written solution. एंड सर somehow लेट्स सपोज कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है एंड व्हेन इट जब हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं वी रियलाइज कि हमने कुछ गलत पॉइंट लिख दिए हैं या हम वो चीज लिख नहीं पाए, बट वी हैव पार्टिसिपेटेड गुड इन द GD टाइम पे। एंड सर फिर हमें ग्रुप ने नॉमिनेट भी कर दिया बिकॉज आवर पार्टिसिपेशन वाज गुड एट द डिस्कशन टाइम। बट सर अब जो रिटन सोल्यूशन गया उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता होगा, तो हाउ अ GTO परसीव दैट थिंग सर? See, how to write a GP solution. When we were in engineering college and when we know कि यार इसका आंसर नहीं आता है तो हम क्या है पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। वो पढ़े नहीं बेसिकली, राइट। और जिसमें हमें अच्छा आता है उसको हम पॉइंट फॉर्मेट में पढ़े कि ताकि डायरेक्ट वो पॉइंट पे आए, नंबर ज्यादा मिले। जी तो सर। सेम थिंग हियर, इफ यू राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट देन ऑब्वियसली इट इज बिट डिफिकल्ट, बिकॉज एक तो राइटिंग, वो ठंड का अगर समय है तो वैसे ही वो हाथ पेन कुछ क्या लिख रहे हो पता नहीं चलता है। जी सर। But if you write in point format, then it is easy for GTO to check also. ओके। And second thing, yes, written solution का importance है, because it gives us कि were you able to grasp the problems, were you able to prioritize in a right order, और उसके बाद आपका जो रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा था, हैप्पीजार्ड था, क्या था, आप जो सॉल्यूशन वो विशफुल चीजें हैं,
कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बस हाथ कर देंगे, एक गाड़ी आएगी उसको हम ले जाएंगे, फिर दूसरा हाथ करेंगे, दूसरी गाड़ी आएगी उसको ले जाएंगे। तो आई टेल देम कि यार सी, गाड़ियां तुम्हारे लिए नहीं खड़ी है कि अरे हमने सुना है कि आप जीपी सॉल्व कर रहे हो इसलिए हम अभी आ जाते हैं आपके। सही बात है सर। आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो देखा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी देखी जाती है। तो रिटन सॉल्यूशन का यस मैं तो है, द बेस्ट वे टू राइट इज इन पॉइंट फॉर्मेट। यू क्लियरली मेंशन व्हाट इज योर एम, प्रायोरिटीज एंड ऑल, देन उसके बीच में स्पेस रखो। एंड लेट मी टेल यू, गर्ल्स आर वेरी गुड इन राइटिंग सॉल्यूशन, ओके बिकॉज एक तो उनकी अच्छी होती है और वो साफ, लड़के उसमें उसी में ही काट के फिर उसको एरो करके उसी में लिख रहे हैं बाय बस दे विल गो कहाँ। तो बहुत होता है। जी सर। बट टेबुलर फॉर्म में भी लिखो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो 10 मिनट इज वेरी शॉर्ट टाइम। माय एडवाइस टू स्टूडेंट इज ट्राई टू राइट इन ए पॉइंट फॉर्मेट, और हर लाइन के बीच में आप एक स्पेस छोड़ो तो क्लैरिटी रहता है। इट यूज्ड टू हैपन जब 10 मिनट का ग्रुप डिस्कशन हो जाता था, देन आई यूज्ड टू टेक आउट द रिटन सॉल्यूशन और मैं एक नजर मारता कि किसने प्रायोरिटी सही लिखी, किसने एम सही लिखा है और किसने लिखा है। देन उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाता है, देन जीटीओ यूज्ड टू टेल देम कि ओके गो टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टास्क। तो ड्यूरिंग दैट 5-10 मिनट्स वी यूज्ड टू चेक तो पूरा सॉल्यूशन क्या सही लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब तुमने जैसे पूछा कि रिटन सॉल्यूशन गलत हो जाए और डिस्कशन में हो तो कैसे, लेट मी गिव माय एग्जांपल ओनली। 2007 I gave for NDA Yes, sir. and I was coming from Western Rajasthan, ठीक है। तो द जीपी में एक था फेरी क्राफ्ट, फेरी पॉइंट एंड फेरी क्राफ्ट, Okay. एंड मुझे पता नहीं था फेरी क्राफ्ट होता क्या है। ठीक है, अब मैंने रिटन सॉल्यूशन में लिख दिया वी विल टेक द फेरी फ्रॉम फेरी पॉइंट एंड गो थ्रू मेटल रोड एंड एडमिट इंजर्ड पर्सन देयर। नाउ जब ग्रुप डिस्कशन में हुआ तो एक लड़का था वो साउथ इंडिया से, उसने बोला कि विल टेक द फेरी एंड विल गो यूज द वाटरवे एंड गो देयर। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा फेरी तो पानी में चलती है, मैं तो रोड में दौड़ा रहा था। Yes, sir. तो अगर आपने गलत लिखा है कोई बात नहीं, बट आप ग्रुप डिस्कशन में आप अगर अपनी गलती को मान के सही करेक्ट बोल रहे हो, एक्सेप्टेबल। Okay. भाई आप अर्ज नहीं रहे हो ना कि नहीं इधर ही जाएंगे। Right, sir. तो उस समय मैंने बोल दिया यस चेस नंबर 2 हैज गिवन वेरी वैलिड पॉइंट, अपना पॉइंट मुझे पता है कि यार पहले तो मैं तो रोड पे दौड़ा रहा था। Yes, sir. बट ग्रुप डिस्कशन में यही देखा जा रहा है ना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उसमें फिर वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो। बिल्कुल राइट। तो मोर इज वैल्यू एडिशन। सेकंड थिंग, अगर आपको ग्रुप ने नॉमिनेट कर दिया है ग्रुप सॉल्यूशन के लिए, राइट। तो कभी अपना सॉल्यूशन मत बोलो, मतलब नेवर एवर रेटल आउट योर ओन सॉल्यूशन। आई ऑलवेज टेल देम, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो, कि नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड टू योर सॉल्यूशन। ओके। You are not only the smartest chap in the group. There might be some other smart chap also. That's why listen carefully. Group discussion में आपका ध्यान उधर होना चाहिए. There might be a candidate. See, there are 3 conditions. एक कैंडिडेट है जो उसने लॉजिकल थिंकिंग की और उसने ग्रुप में बोला और ग्रुप मान गया, तो उसके अच्छे पॉइंट। यस सर। एक कैंडिडेट है जिसने लॉजिकल थिंकिंग की, उसने बोला पर ग्रुप नहीं माना, तो उसके लॉजिकल थिंकिंग वाले पॉइंट तो वो जीटीओ टिक कर देगा, बट यस इन्फ्लुएंस द ग्रुप वो नहीं हो पाया। नाउ एक कंडीशन उसमें ये होती है कि एक कैंडिडेट है जिसने उस बंदे का लॉजिकल पॉइंट सुना और उससे समझ में आ गया कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, और उसने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर दिया। राइट। सो तो इस बच्चे के भी नंबर बढ़ेंगे कि यार ये कम से कम अपना दिमाग लगा रहा है और उसकी बात मान रहा है और ग्रुप को भी इन्फ्लुएंस कर। बिल्कुल। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप लिसनिंग द ग्रुप मेंबर्स, क्या बोल रहे हैं उसको कंपेयर करते रहो एंड एवेल्युएट। ओके सर। सर मुझे लगता है कि जो मेरे क्वेश्चंस अभी प्रिपेयर करें, मुझे एक और सेशन चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत डिटेल में एक जीटीओ के ऑब्जर्वेशन में जाता है, जो मैं जैसे आप डिस्कस कर रहे थे तो मैं वो चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रही थी सर। मूविंग एहेड सर, जब भी बाकी जितने भी ग्रुप टास्क होते हैं तो हम टीम स्पिरिट की बात करते हैं,
सर कि हमें टीम वर्क आना चाहिए, इस तरह के टर्म्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, पर बच्चे इसको बहुत अलग तरह के डेफिनेशन से लेते हैं, बिकॉज सर हम टर्म से फेमिलियर हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि मे बी बल्ला फट्टी उठाने से टीम वर्क हम दिखा रहे हैं, या सबसे आखिरी में जाना, या सबसे आगे रहना, स्नेक रेस हो जाए, सर कोई भी पर्टिकुलर टास्क हो। बट सर आई वांट टू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज टीम स्पिरिट या टीम वर्क क्या है एक जीटीओ की नजर में? हाउ डू यू परसीव टीम वर्क? See, first of all, there is no I in SSB, ओके। or especially there is no I in group, हम्म। except individual obstacle. ओके सर। ठीक है? हाँ हाँ। It's always the group of people. हम्म। You have to be with your group. राइट। Generally, in GOR, people have the tendency of doing the task first हम्म। and try to impress the GTO. No, हम्म। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नहीं चल रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. राइट सर। How you are encouraging your group member to complete the task, how you are encouraging your group member to overcome the task, how you are helping your group members. See, there might be a physically fit chap, there might be a chap who is not physically that fit. How you are helping, how you are avoiding the rules. See, GR में जनरली होता है कि GTO बीच में आएगा और बोलेगा, ओके जेंटलमैन, हाउ मेनी ऑफ यू ब्रेक रूल्स. यस सर। तो अगर आपको पता है कि मेरा रूल ब्रेक हुआ है, तो हाथ खड़े कर दो कि यस मैंने किया. जीटीओ कोई हॉकी लेके मारेगा तो नहीं आपको, वो बोलेगा कि रिपीट, दैट्स इट. यस सर। तो एक तो ये कुछ बच्चे होते हैं वो वहीं पे दूसरे को कोनी मारने लग जाते हैं, ये चेस्ट नंबर 5 यू टच रेड, व्हाई डिडंट यू रेज हैंड. ये सब जीटीओ देख रहा होता है. बिल्कुल। उनको लगता है जीओआर में जीटीओ कुछ नहीं देखता, वो हंसी मजाक करता रहता है अपने बाकी जीटीओ से. ऐसा नहीं, वो हर चीज नोट कर रहा होता है, वो कहीं से भी कुछ भी देख लेता है. यस सर। तो फिर वो वहां पे नोट कर लेगा कि यार दिस कैंडिडेट इज हैविंग दैट टेंडेंसी टू मतलब पुट हिज वेट ऑन अदर्स. तो वो वाली चीज वो बहुत नोट हो जाती ओके। है. करेज वाली चीजें इजीली नोट हो जाती है. यस सर। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द कैंडिडेट्स हु इज हेल्पिंग द अदर कैंडिडेट्स, यस सर। हु इज टेकिंग द ग्रुप अहेड यस सर। rather than focusing on himself only. There are candidates वो फटाफट कूद के आगे खड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं करते. या फिर वो कुछ नहीं करते, फिर वो जीटीओ को देखते हैं, जैसे ही उनको लगता है कि जीटीओ मेरी तरफ देख रहा है, जोर जोर से वो क्राई शुरू कर देते हैं. तो वो होगा. जी सर। Have to help your friends. अपने ग्रुप को आगे बढ़ाओ. It is a group obstacle race. You have to win. यहाँ पे leadership is not कि I have done it. It is we have done it. एब्सोल्युटली सर। We thing should be there. And in PGT also, it is the we thing should be there, always there. Your aim is to cross the obstacle with the group member and helping material and load. ये first rule है, group rule है. राइट। So you have to take the group ahead. See, there are candidates जो PGT में आगे चले जाते हैं और फिर वो जगह नहीं छोड़ते. उन्हें लगता है कि ये हरियाणा रोडवेज की सीट है, इसमें मैंने रुमाल रख दिया, अब ये मेरी है. राइट सर। No, it is wrong thing. अगर आपको नहीं आ रहा है and somebody is asking कि यार let come, I have idea, let me come, then you are creating an obstacle of in front of the group A एब्सोल्युटली। by not going behind. अगर आप पीछे चले जाओगे वो आगे आ जाएगा, वो कर देगा, तो वो आपका ग्रुप आगे चला जाएगा. बिल्कुल। बट अगर आप ये ऐसे करते रहोगे तो उससे क्या, फिर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जीटीओ. फिर वो बोलना पड़ता है जीटीओ की, ओके जेंटलमैन, दोज हैविंग आइडिया प्लीज चेंज प्लेसेस. फिर भी नहीं जा रहे तो फिर वो क्लियर कट दिखता रहता है कि यस देयर इज लाइमलाइट सीकिंग टेंडेंसी, ही इज नॉट गिविंग चांस टू अदर्स. तो वो फिर नोट हो जाता. बिल्कुल सर। इट इज ऑल अबाउट वी, इट इज नॉट आई. यस सर। सर आपने 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को असेस किया है, एंड स्टिल अभी भी आप एसएसबी पाठशाला के थ्रू सर हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत तरह के कैंडिडेट्स या बहुत तरह के ग्रुप्स आपने देखे होंगे, and through your whole journey sir, I want to know, is there any group you found that was very idle in performing the task and you have realized this group have something and maximum candidate got recommended from that group? Generally, like recommendation rate is very high in NDA and girls batch. Okay. So we have some hat tricks. We call it hat tricks. एक hat trick होता है जिसमें आपने 3 क्लियर किए कैंडिडेट और वो तीनों लगातार क्लियर हो गए. एक सुपर हैट ट्रिक होती है जिसमें आपने 3 क्लियर किए कैंडिडेट्स और वो तीनों कैंडिडेट क्लियर बाय ऑल 3 हो गए.
ओके, सो जो सुपर हैट्रिक है वो मेरी 5 साल के करियर में एक बार हुआ है, और बाकी हैट्रिक तो 3-4 बार हो चुका है. ठीक है. Generally, it happens with the NDA candidates because NDA candidates are very motivating, very motivated, very motivated. Those, especially those who are appearing in 12th. Yes, sir. So they are highly motivated. They have a good knowledge also, and they perform well in the group also. Okay. Because uh, for them it's a game. Yes, sir. So they perform very well. And I have cleared 6 candidates out of 10, sometimes 7 candidates also. So NDA generally, yes, I have seen very good batches. Okay. Girls batch also very motivating. The girls batch are very highly motivated, highly motivated. I must say, because see, का बहुत difficult है. Because merit in आना itself it's very difficult. That's true. I have seen a girl who got recommended 4 times. तो कमांड टास्क से मैंने पहले उससे पूछा कि आई वेंट एक्चुअली इन आर्मी बोर्ड, तो मैंने उससे पूछा कि फर्स्ट टाइम कौन सी रैंक आई थी, तो सम 50, देन 20, देन 11, देन 7. एंड आई वाज लाइक कि तो बाकी और में भी तो जाओ, इसमें क्यों है. तो एंड शी वाज नहीं सर, इसको आर्मी में ही जाना है. एंड शी वाज टू गुड एंड आई गेव हर वेरी गुड मार्क्स, मतलब अराउंड ट्रिपल डिजिट में आई गेव मार्क्स. Okay, sir. Still she was 6th rank only. She missed the merit by 1 marks. Okay, sir. One rank, actually 1 rank. ठीक है. So girls are very motivated because they have to fight with the family, the system, society. Then they have to come here. And यहाँ पे भी that again repetition. You have to come again repeater, then again repeater. Still they are very motivated. बॉयज का ठीक है कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं. वो थोड़ा है माइंडसेट है, तो बॉयज को चेंज करना पड़ेगा. सी बॉयज के पास बहुत स्कोप है, गर्ल्स के पास अब ठीक है. एनडीए में शुरू हो गया, सीडीएस में भी अब धीरे शुरू हो जाएगा. वंस द गर्ल्स कम पास आउट फ्रॉम एनडीए, देन इट विल स्टार्ट इन सीडीएस आल्सो. Yes, sir. Sir, I can understand the merit part because लड़कियों की वैकेंसी एनसीसी स्पेशल एंट्री में सिर्फ 4 है और लड़कों की वहाँ पे 45 है. So competition is pretty evident, sir. Sir, जीटीओ के अंदर जब गर्ल्स का जीटीओ होता है और बॉयज का जीटीओ होता है, तो यू हैव बीन देयर इन बोथ द दोनों की जीटीओ में आप थे. डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, सर? कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है या इट इज क्वाइट द सिमिलर, पैरामीटर सेम रहते हैं? Parameters, somewhere previously it was there that we optional tasks were there in individual obstacle, like double ditch and tiger leap was optional for girls, but now I think they have removed it. Okay. And difference, girls start like rocket. जीडी जीपी में they are too good. उनका मतलब जीडी सुनने में इतना मजा आ जाता है कि वेरी गुड. और जैसे ही पीजीटी में आती है, वो 3 लड़कियां तो बेचारी वो प्लैंक को पकड़ के रखती है, क्योंकि वो प्लैंक इतना भारी हो रखा होता है. जी सर. 6 फीट प्लैंक, क्वाइट हैवी. तो यस, उनका जीडी जीपी अच्छा जाता है. देन आउटडोर टास्क में दे जनरली वर नॉट एबल टू परफॉर्म. एंड उल्टा है, उनका जीडी में ज्यादा आता नहीं है, तो वो पीजीटी में आते हैं, फिर वो सारे ऋतिक रोशन बन जाते हैं कि इधर पट्टा लगाएंगे, कर देंगे, रस्सी बांध देंगे. तो ये थोड़े चेंजेस, यस, थोड़ा सा फर्क है. गर्ल्स का आउटडोर टास्क में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, बट इंडोर टास्क में दे आर टू गुड. उल्टा बॉयज का उल्टा हो जाता है कि इंडोर टास्क में दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट गुड. बट यस, तो बीच में हमारा ये भी चला था कि गर्ल्स बॉयज के मिक्स बैच बता रहे, तो हमने बोला भी था कि यार फिर तो कोई भी पास नहीं होगा, क्योंकि जीडी में लड़के फेल हो जाएंगे और आउटडोर टास्क में लड़कियां कर नहीं पाएगी. जी सर. गर्ल्स बॉयज में तो फिर लड़के सारे पट्टाबंदी आगे लेके चले जाएंगे. यस सर. तो फिर बाद में आई थिंक वो अभी प्रपोजल होल्ड पे है. सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर दोनों का साथ परफॉर्म होगा. आई एम जस्ट इमेजिनिंग इट, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी. गर्ल्स डिफिकल्ट जीटीओ के लिए ज्यादा होगी कि पास किसको करे यार. बिल्कुल क्या गर्ल्स में तो कोई ना कोई तो अच्छी फिजिकल में अच्छी होती है, तो वो आगे लीड ले जाती है. बिल्कुल सर. बट बॉयज गर्ल्स मिक्स हो तो फिर तो बॉयज तो पट्टा ही नहीं देंगे कि नहीं दे रहा हम, तो जो करना है कर लो. जी सर.
Yeah. सर रिसेंटली मैंने बहुत सारे नेवल ऑफिसर्स के साथ वीडियो किया, दे आर बीइंग एक्स एसएसर्स, इंटरविंग ऑफिसर, बीइंग अ जीटीओ सर, एंड आई हैव रियलाइज्ड आई हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ पीपल फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, बट आई पर्सनली रियलाइज कि लोगों का इंक्लिनेशन आर्मी की तरफ बहुत ज्यादा है कैंडिडेट्स के अमंग में. Maybe they are not aware about the opportunities that are given in Navy. But when I got to interact with people, I got to know this, sir, इसमें बहुत सारी opportunities है. And so you have been retired from lieutenant commander rank and you would have experienced a lot in the Navy. Sir, किस तरह की opportunities हैं Navy में सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर. क्योंकि candidates को बस आर्मी के बारे में पता है and बस वो सर जो ट्रेंड चलता है they follow it. So what kind of opportunities are there in Navy? See, to answer your first question, army inclination, मेरा भी army inclination था, ठीक है. Ah, yes sir. My CEO used to say, you are a army officer in naval uniform. And I remember when I was passing out from Indian Naval Academy, Yes sir. so my divisional officer told me, "Oh, bloody Charan, you are finally going to become an officer." Okay, yes, sir. So he asked me, so now you tell me which is good, army or navy? Yes sir. Because he knew my IMA history. Mhm. So मैंने उससे फिर वो एक ही डायलॉग बोला था कि सर, you always love your wife, but you never forget your first crush. So Okay. he told me start rolling. Because see, all movies, how one person get motivated, True movies sir. especially a civilian, Yes sir. by movies, Lakshya, by Border. web series, Yes sir. Lakshya, LOC, Border, maximum movies are army. Secondly, most of the war which we have fought, Yes sir. they are land. Yes, Mhm. in 71, Navy has done 2 operations. Right. So, and see, if you see our country, most of the invaders came through land area. Absolutely sir. आप शुरू से अगर देख लो, Turks, Mughals, they all came from Afghanistan and through land. Yes sir. So most of the wars, everything was land based. So because of that, army was developed more. Hmm. Yes sir. अगर आप यूएसए में देखोगे, नेवी इज वहां ज्यादा नेवी का क्रेज है. Okay. बट इंडिया में आर्मी का इसलिए क्रेज है बिकॉज हम लैंड बेस्ड, फाइट भी हमारा ज्यादा लैंड बेस्ड हुआ है. चाइना पाकिस्तान और लैंड बेस्ड है, Mhm. तो इसीलिए इंक्लिनेशन ज्यादा है, स्पेशली नॉर्थ में बहुत ज्यादा है कि आर्मी में ही बहुत जाए. sir. जी सर. एंड मैंने भी नेवी का सिर्फ फॉर्म इसलिए भरा था देखने के लिए कि यार अपन सेलेक्ट हो पाते हैं कि नहीं हम. Yes sir. But somehow I landed in Navy, and Navy has given me a wonderful opportunities to move around other countries Yes. and good places, good posting. Yes sir. फौज में कहावत है कि आर्मी का सपोर्ट सिस्टम, एयरफोर्स का रूटीन और नेवी का पोस्टिंग, Yes दिस sir. इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. सो नेवल पोस्टिंग्स आर वेरी गुड, Yes, एंड sir. नेवी के साथ you get lot of exposure, technical exposure बहुत ज्यादा है, because we are dealing with latest equipments. Yes sir. And our crew sailors are very highly educated, very technically sound. So Yes. that way, as a naval officer, you have a lot of opportunity to grow in a lot of fields. Mhm. Yes See, sir. I am a computer science engineer. मैंने engineering computer science में की, but Navy में I was an electrical officer. Yes sir. Right. वो अलग बात है कि मेरे फर्स्ट ईयर में बैक आई थी इलेक्ट्रिकल में, बट I had to read about electrical. I was posted as a deputy electrical officer also, so I had to again read. और एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फौज में चले जाएंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा. नहीं. Yes sir. See, एक कहावत है कि I used to run away from studies, that's why I joined फौज. Mhm. Now in फौज I am running also and studying also. So, Yes sir. मतलब those who are watching, those who wanna watch this video, हाँ. so for them I just want to say only one thing. अगर तुम ये सोच रहे हो कि फौज में आगे पढ़ना नहीं है, पढ़ना सबसे ज्यादा फौज में पढ़ना पड़ेगा. बिल्कुल सर, इतने सारे कोर्सेज होते हैं, वायोस, कमांडोज, पता नहीं क्या क्या, बहुत पढ़ना पड़ता है. राइट सर. And when as a short service officer also you get a lot of opportunity. Once if you don't get, first of all you get the chance to get a permanent commission. Yes sir.
But if you are not able to get permanent commission, then also when you, after 10 years you go out, you are a changed person. Okay. You have that so much confidence in you that yes, I can do anything. Yes, sir. मैं कुछ भी कर सकता हूँ. So that helps you to adapt outside also. A lot of my course mates who left after 10 years, so I left after 12 years. A lot of my course mates left after 10 years. They are doing extremely well in corporate sector. Yes, Most sir. of them are in JPMC and all and doing very well. Mhm. मेरे साथ तो वो हो गया कि शुरू मजबूरी में गए थे, अब मजा आ रहा है. तो वो है. सर But आपकी as a short service also, you will get good opportunity. See, I got an opportunity to become a GTO here. यस सर, एब्सोल्युटली. सर आपका खुद का जर्नी में देखूं तो सर यू हैव बीन 6 टाइम्स रिकमेंडेड एंड 6 बार रिकमेंडेशन. सर मैंने बहुत रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट कैंडिडेट देखे इतने वीडियोस करने के बाद. 3 देखा है, 4 देखा है, मुश्किल से 1 या 2 कैंडिडेट्स होंगे सर व्हिच आई हैव मेट वो 6 टाइम कैंडिडेट, 6 टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट. एंड सर और ये मैं बात करूँ तब जब इतनी गाइडेंस थी नहीं, जब इतना लोगों का अवेयरनेस नहीं था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 ऑनवर्ड्स. बट एंड सर जब अभी के जो कैंडिडेट्स हैं जो आपने असेस करे हैं, यू आर बीइंग जीटीओ, they are very different in terms of because they get the guidance, they have free resources on YouTube and other platforms. What change in the quality of candidates you feel, sir, when you were going to the SSP and when you have assessed the candidates and you are still helping them through SSP Pathshala, sir? See, we are humans. We always evolve, Yes, sir. right? Yes, sir. I started giving SSB. There was no YouTube, no Google, nothing. So I don't have so many resources. So I have to read through books. Yes, sir. When you read through books, you have tendency to write down Yes, sir. and then remember it forever. Mhm. Now people have everything Mhm. fingertips. Yes, sir. बट वो बोलते हैं ना, जो चीज आसानी से मिलती है वो फिर ज्यादा दिन टिकती नहीं. Mhm. So this is the problem. Now the young generation is very smart. They are extremely, Yes, sir. but with some pros there are some cons also. Absolutely. अब पेशेंस कम हो गया बच्चों. Mhm. Yes, sir. पेशेंस बहुत कम हो गया. अब आई हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट. कल ही मैंने एक लड़की से बात की थी एंड शी वाज, वो फोन पे इतना डेस्परेशन दिखा रही थी, सर आई वांट टू गेट सिलेक्टेड, आई वांट टू गेट सिलेक्टेड. Mhm. मैंने उससे सिंपल एक सवाल पूछा कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वांट परमवीर चौधरी. Mhm. उसको नहीं पता था. Mhm. बेटा, आप डेस्परेशन दिखाने से पहले अच्छा आप पढ़ाई करो. बिल्कुल. तो people, the young generation should remember one thing, that SSB is very simple examination. The problem is that people start preparation once they get the call letter or once the date is out. No, your preparation should start from the day you have filled the form, and it is a 6 month preparation. कोई यूपीएससी की तरह मतलब लंबा नहीं है या आप पूरा ही डीप में जा रहे हो. आपको बस सेकंड थर्ड लेयर तक ही पढ़ना है. Mhm. ऊपर वाली लेयर पढ़ के जाओगे तो उससे नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू ऑफिसर आपसे एक सवाल पूछेगा और फिर आप उसका जवाब दोगे, और नेक्स्ट सवाल उसी से चीज से पूछेगा क्योंकि आप उसका नहीं पढ़ के गए बिल्कुल. और आप वहां पकड़े जाते हो. Mhm. तो यंग जनरेशन, मतलब अभी जनरेशन, ऑल्दो अब ऐसे बोलता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं कुछ ज्यादा बूढ़ा हो रहा हूँ. तो अभी जो जनरेशन है दे आर स्मार्ट. मेरे को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता बिकॉज फौज ने अलाउ नहीं किया. So once I started using Instagram and I used to ask these candidates also, जो मेरे पास आते थे कि यार ये रील कैसे बनती है, and they are too good. They are too good in digital marketing, and they give me ideas कि सर ऐसे करो, सर वैसे करो, ये करा करो, ऐसे करा करो. Yes, sir. तो फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार ये सब करने से अच्छा तू पढ़ाई कर. ठीक है. रील देख के कि पासिंग आउट चल रही है और पीछे गाना चल रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आओगी, तो वो नहीं आएगी. Yes, sir. रील देखना बंद करो, पढ़ाई करो, Yes. मेहनत करो, सब होगा. देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ मेहनत. Mhm. ये मतलब जब मैं अभी के बच्चों की एज में था तो माय फादर यूज्ड टू टेल दिस थिंग Yes. कि देयर इज नो शॉर्टकट. तो मुझे लगता था कि क्या है अभी, और अब मुझे लग रहा है, अब मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं ये सही है. अब मुझे क्यों, बिकॉज ये चीजें मैं अब अभी अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ Yes, कि sir. पढ़ना तो पड़ेगा. किसी भी कोचिंग के पास जाओ, कोई किसी के पास जाओ, किसी के पास वो दवाई नहीं है कि वो मिला दे और उसकी सारी मेमोरी आपके पास चली जाए. पढ़ना आपको ही पड़ेगा.
बिल्कुल sir. I have to work hard, and there is no substitute of hard work. Yes But sir. yeah, now with hard work, you can do smart work. Yes sir. So Absolutely sir. combine smart and hard work, and you will get success. Yes sir. But sometimes success take time. So have patience. बिल्कुल sir. Patience, perseverance, and practice. 3 P's. Right. That will help you in life. Sir, there are a lot of candidates who are watching it and they are preparing. And sir, as I said, there are so many resources out there, and there could be a chance that they want to reach out to you. Please share the details, sir, how somebody, where you are based at, how you are functioning, and how SSP Pathshala came into play. Because sir, abhi recently SSP Pathshala ke bare mein maine suna, and how it has been started. What was the motive of starting this organization, sir? See, Joshi sir, has spent 17 years in SSB, and he was psychologist when I gave my SSB. Okay. So, and I got a chance to serve with him in last leg of my service. Sir retired in June, and I retired in December. Mhm. And Feb end, I was till Feb end, I was doing course in IIM Bangalore. Mhm. So in March, April, in March we started one batch, and that was a service batch. Mhm. Out of 8, 2 got recommended in PCS, Okay, sir. and they got merit in also. Mhm. April we didn't had any batch because I was preparing the GTO round. Mhm. May we started full fledged. May, June, July, August, and September we are running, and we have a 10-day course. Mhm. In those 10 days, the candidates will have 2 interviews, 2 full site tests, 2 times PGT, HGT, FGT, and 6 individual command tasks. Okay. Because I wanted to keep the number of command tasks high, because PGT में again वही होगा जो हर जगह होता है कि वो जो आगे नहीं जा रहा वो नहीं सीखे. Mhm. जब मैं कमांड टास्क में उधर ले जाता हूँ तो मेरे हाथ में डंडा होता है कि अब तू करके बता, अब आइडिया लगा, अब दिमाग कर. पीजीटी में चलो तेरे को नहीं मिला होगा, अब तो करके दिखा. और 6 बार इसलिए करा सो दैट क्लैरिटी आ जाए. बिल्कुल sir. एंड हाफ साइड टेस्ट रोज होता है, वो है पीपीडीटी रोज होता है. सो एंड वी कीप 20 कैंडिडेट्स इन अ 10 days बैच, Okay. सो दैट कि सुबह जब मैं जीटीओ करा रहा हूँ तो सर 10 बच्चों का साइन करा दे और फिर इंटरचेंज बिल्कुल. एंड फोकस ट्रेनिंग. Mhm. तो अगर मैं 100 बच्चे रखूंगा तो मेरे को 100 बच्चों के नाम याद नहीं रहेंगे. Mhm. आई एम हैप्पी दैट टुडे जितना भी मैंने बच्चे पढ़ाए हैं उनके नाम मुझे याद है. Yes sir. And because of this thinking, the students are really connected with us. Yes sir. क्योंकि आप बहुत क्लोज कनेक्ट हो जाते. 10 बच्चों के ग्रुप में आप पढ़ा रहे हो तो बहुत क्लोज कनेक्ट हो जाते. Yes There sir. are candidates who took SS coaching from us but not got recommended. But at least they are calling me and saying कि सर मेरा एनडी अच्छा हुआ, मैं वापस आऊंगा. Yes sir. तो आई यूज्ड टू टेल कि अभी पहले यहाँ पे कर चुके हैं, अब कहीं और चला जाना. नहीं सर, मैं आपके पास ही आऊंगा कि आपसे सीखूंगा. तो Mhm. एक टीचर के लिए इससे ज्यादा अच्छी क्या बात. Right sir. So and fees is very minimum. मुझसे कम कर देंगे तो फिर मुझे अपने जेब से देने पड़ेंगे. बिल्कुल sir. So fees is also including food and stay and coaching is 16,000 for 10 days. Okay. Okay. सर भोपाल में अभी आप सिचुएटेड हैं. As far Yeah, as I we know, are. जोशी सर Yeah, से जब मेरी बात हुई तब पता चला कि भोपाल में ये सर वहाँ पे तो एसएसबी के बच्चे बहुत सारे रहते हैं, तो people must be aware about it sir. yeah. इतना नहीं है. We are, because we are not very small, very small. We just started. So yes, people are calling us कि सर आपके बारे में सुना. अभी एक बच्चा हमारा आईएमए से रिकमेंड हुआ था सीडीएस के लिए. एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि 2022 में Mhm. आई वाज हिज जीटीओ. तो Okay. वो आया और उसने आके मुझे बोला कि सर यू वर माय जीटीओ उस बैच में. तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो पास किया था. जोशी सर साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फेल कर दिया था, जो मैंने पास किया था. तो बट ही गॉट रिकमेंडेड नाउ थ्रू सीडीएस आईएमए. ही गॉट. Yes sir. Okay. Sir, I believe your organization is doing fantastically amazing, sir. And that is the reason, sir, I wanted to invite, because आपका perspective या आपका बोलने का अंदाज है बहुत अलग है. I've seen GTOs who are very serious, so frankly speaking, but people are very fond of you. When I shared
as I said, I shared with few of my friends or officer. They were super excited, even though they are commissioned, sir. They are serving fantastically well, but they were saying they are very excited to see this video. And therefore, sir, people connect with you, and people are fond of you. And I really wish, sir, we do more videos because GTO के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चे अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि उनका GTO के अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर. बिकॉज हम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो राइट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं. एंड एक एक ये मिथ बहुत है बच्चों को कि जीटीओ बहुत अच्छा गया था. हाँ सर, मैंने बिकॉज सुना है कि साइक के अंदर भी कॉन्फ्रेंस में भी ये होता है कि लाइक द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड व्हिच टेक्निक वाज गुड, जीटीओ वाज गुड. Yes, sir. तो फिर वो उसके बाद जाने के बाद बोलते हैं कि यार तुम ऐसा क्या करते हो कि उसको पता ही नहीं लगता कि उसका खराब जा रहा है जीटीओ. तो सी जीटीओ विल नेवर इंटरफेयर. Right. एज ए जीटीओ आई नेवर यूज्ड टू इंटरफेयर. जो करना है करो, मैं हंसता रहता था, आराम से करते रहो, प्यार से बात करो. और देयर वो हर जीटीओ का अलग स्टाइल होता है. मेरा था कि आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रैंक विद दैम. तो खासकर जो एनडीए के बच्चे हैं वो भूल जाते हैं कि नहीं ये असेसर भी है हमारा. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल कमांड टास्क था, एक बच्चा एनडीए वाला है. मैंने उससे पूछा कि ओके सपोज यू गेट रिकमेंडेड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू. Yes, sir. एंड ही वाज लाइक सर जिस लड़की ने मेरा प्रपोजल ठुकराया है उसको फोन करूंगा. तो मैंने कहा अच्छा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी. बोले यस सर एग्जैक्टली ये. अब ही इज नॉट दैट मैच्योर. Absolutely, sir. ऑब्वियसली थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि आप किसके सामने क्या बात कर रहे हो. तो इसीलिए एज ए जीटीओ आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रैंक. जो पूछना Yes, है sir. पूछो. एंड आफ्टर डीब्रीफ जो होता था एंड सब खत्म होता है, जो डीब्रीफ होता है उसके बाद आई यूज्ड टू टेल कि ओके आस्क एनी क्वेश्चन. तो समटाइम्स दे हैव लिमिटेशन. और कोचिंग में भी बोला जाता है कि नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम जीटीओ. एंड आई यूज्ड टू डोंट आस्क एनीथिंग. एंड दे यूज्ड टू आस्क मी सर वेयर आर यू फ्रॉम. और खासकर एक सवाल, सर इन विच अटेम्प्ट डिड यू गॉट सिलेक्टेड. तो आई यूज्ड टू से आई गॉट सिलेक्टेड इन फोर्थ अटेम्प्ट. तो वो रिपीटर गिनने लग जाते हैं कि अपने तो 2 ही हो रखे हैं अभी, तो अभी चांस है. Yes, sir. जी sir. It was a good thing and I loved this job. It's the best job. See, Right. I had 3 years when I joined Forge. First, मतलब पहले तो स्ट्राइप स्टार जो भी लगना लग जाए. सेकंड बुलेट ले लूं. और तीसरा जीटीओ. Yes, sir. So I fulfilled my all dreams after joining Forge, Bullet, and became a GTO. Yeah. And एक चीज और मैं बताना चाहता था कि अभी तुम बात स्टार्ट करने से पहले आई गॉट ए कॉल एंड देयर वाज अ चैप. उसको मैंने पूछा एयरफोर्स एफकेट क्यों नहीं दे रहे हो. एंड ही वाज टेलिंग कि सर एयरफोर्स में नहीं जाना है. फ्रॉम मतलब through your channel I just want to say all the candidates, see, देओ सही एग्जाम. कोई एयरफोर्स बैठी थोड़ी है तुम्हारे लिए कि आप हमें ज्वाइन कर लोगे तभी हम इंडिया पाकिस्तान और चाइना पे अटैक करेंगे. ऐसा तो है नहीं. या अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कान पकड़ के ले जाएगी तो नहीं कि तुमने फॉर्म क्यों भरा, आप सेलेक्ट हो गए, अब चलो आप ज्वाइन करो. Yes. डोंट हैव दैट फियर कि नहीं एग्जाम नहीं देना. अरे बेगर्स कांट बी चूजर्स. सिलेक्शन हो नहीं रहा कहीं पे और आप बोल रहे नहीं एयरफोर्स नहीं जाऊंगा, वो अच्छी नहीं लगती. दिस इज सिली रीजन. आप सारे एग्जाम देने से कभी मत डरो. अगर आप नहीं दोगे तो 100% है आपका सिलेक्शन नहीं. बिल्कुल 100%. उसमें तो मैं भी लिख के देने को गारंटी. बट अगर आप देते हो तो सम प्रोबेबिलिटी इज चेंज. Absolutely. So don't be afraid. Don't have choices. You keep choices when you are selected in Army, Navy, Air Force. Then choose Then whichever choose. you want to do. Yes, sir. Selection हो नहीं रहा कहीं पे और आप अभी से choices डाल रहे हो कि नहीं I will join Air Force. नहीं Air Force अच्छी नहीं लगती सर. Then that is wrong. The conversation was so fun and I believe GTO के point of view पे सर मैंने बहुत कम candidates को देखा है जो GTO को ऐसे mention कि GTO के अंदर उन्हें problem लगती है कि उन्हें लगता है कि GTO अच्छे से perform नहीं हुआ है. But I got to know other side of GTO and I really believe we need to do more sessions because there are candidates who are preparing and they are candidates from very remote area who are preparing for defense forces and they need help, they need guidance, and people like you are always invited and always, you know, sir, I always want कि हम और इस तरह से और discussion करें. And क्योंकि सर ये बहुत छोटे छोटे doubts हैं candidates के. When they message me, when they ask me, they feel like are these doubts are even considerable to be asked. चाहे जैसे सर fear का doubt है. अब they have this thing in their head, but they fear that, you know, if I ask this, should it be a considerable doubt? And you have been there helping candidates, sir. I believe
You are doing a fantastic job, sir. Thank you so much for joining me, and all the best for the organization that you're doing and for the wonderful work that your team is doing, sir. Thank you so much for joining, sir. Thank you, Sheetal. I think you are doing more wonderful job than what we are doing, because my reach can be of 20 or 30 or 40 only. But you have the reach of more than thousands, lot of thousand candidates see your videos, and through your videos, through your blogs, we are able to connect them. Our voices is reaching to their ears because of you. Yes, sir. So I think you are doing much better job than what we are doing. And Yes, sir. surely I would be very happy to connect with any kind of any students who have any simple doubt. You can share my Instagram Yes, sir. link, message Sure, me, sir. and Yeah. whenever I will be free, I will be surely helping them. And Yes, sir. it will be so. See, society has given me a lot of things, so now it is my turn to give society back. Yes, So sir. surely with every kind of candidates, and will. But one thing is, students should remember, अगर आप जो कोचिंग में और कहीं पे भी ले रहे हो और सिर्फ वहां पे सीख के रट के जा रहे हो और वहां एसएसबी में जाके इफ यू वॉमिट देयर you will not get it. You have to use your brain. Yes. Take coaching for guidance, for environment. Yes. That's it. रटना नहीं है, रटोगे तो पास कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जीटीओ वहां पे काफी बच्चे पूछते हैं कि सर जीटीओ कैसे कर सकते हैं, तो आई यूज्ड टू से कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है जीटीओ के टक्कर में, ठीक है। तो जीटीओ को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, इज Right, sir. गुड। Bilkul, sir. Sir, I will put the details because there are candidates who might be reaching out. So all the details will be there in the description box. Thanks once again, sir. Have a wonderful time ahead, sir. Jai Hind, sir. Thank you very much, Sheetal. All the best. Thank you very much. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.